اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ، والدین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ یہ جو آپ کو اردو سکھا رہے ہیں اس کے لیے ویڈیو بنانے لگے ہیں صفحہ نمبر 31 سے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں والدین اور اساتذہ کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو یہ سکھائیں۔ دیکھیں، آپ کا کام سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ بچے نے سیکھا نہیں، وہ ماشاءاللہ تھوڑے وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ آپ کو تھوڑا پیشنس سے کام لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آگے میں نے جو ہے کہ 10 باتیں بتائی تھیں جو عمل کروائی جائیں بچوں سے۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ آگے سنہری موتی میں اجازت کے بغیر دوسروں کی چیزیں مت لیں۔ یعنی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ بچوں سے کہیں کہ جو چیز ان کی نہیں ہے وہ نہ لیں، اگر وہ لیں گے تو وہ چوری ہے۔ تو اسی سلسلے میں اگلی بات ہے کہ انہیں بولیں کہ اگر انہیں کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں یا تھوڑا یوز کرنا چاہتے ہیں یا کسی ٹوائے کے ساتھ تھوڑا کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لے لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پرمیشن کے بغیر کسی کی چیز مت لیں۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ آگ جو ہے کتنی نقصان دہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ ہو سکے تو تھوڑا سا بچے کو محسوس کروائیے، اس کا ہاتھ تھوڑا سا جو ہیٹ کے پاس لے کے جائیں، اسے بتائیں دیکھیں یہ بہت خطرناک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے دور رہیں، اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ بچہ ناسمجھی میں اور نہ جانتے ہوئے اپنا کوئی نقصان کر لے، اسے تھوڑا بہت سمجھا دیں تاکہ کم از کم اگر ہم کسی نقصان سے خدا نہ خواستہ نہیں بچ سکتے تو چلیں اس کی شدت کم ہو جائے۔ تو اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ جس چیز سے والدین اور اساتذہ منع کریں اس میں بچے کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر شروع میں تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، لیکن جب آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب باتیں سیکھ جائے گا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیے کہ گھر سے باہر جب جاتے ہیں تو خدا حافظ کہہ کے جاتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارک میں جاتے ہیں ہم، بعض اوقات بچوں کو لے کے کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہیں وہ پودے لگے ہوتے ہیں، اسکولز میں پودے ہوتے ہیں، تو بچوں کو بتائیے کہ پھول جو ہے وہ دیکھنے اور سونگھنے کی چیز ہے، توڑنے کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھول نہیں توڑنے آپ نے۔ اس کے علاوہ پانی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بچے پیتے ہیں تو کیا کیا کام انہیں کرنا ہے، انہیں بسم اللہ پڑھنی ہے، انہیں جو ہے وہ بیٹھ کے پانی پینا ہے، انہیں 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، پی کے الحمدللہ بولنا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنا پانی بچوں کو ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، اتنا لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ گلاس بھر کے پانی لے رہے ہیں اور صرف 1-2 گھونٹ پیتے ہیں اور باقی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انہیں بتائیے کہ پانی ضائع ہوتا ہے اور یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے اور ہمیں بھی ناپسند ہے۔ بچے ظاہر ہے پھر اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے اور جو آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کو چھوٹی ایج سے ہی اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں، جس میں سر فہرست بچوں کے کپڑے چینج کرنا ہے۔ تھوڑی بہت چیز جو وہ اپنی چینج کر سکتے ہیں، جیسے اسکول کا یونیفارم ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، تو انہیں ساتھ ہیلپ دیں اور انہیں عادت ڈالیں کہ وہ صبح بھی اپنا یونیفارم پہنیں اور پھر جو کپڑے وہ اتاریں اسے سنبھال کے جائیں۔ پھر بچوں کو یہ سمجھائیے کہ آپ نے اپنے کپڑے جو ہیں کسی کے سامنے چینج نہیں کرنے، تو آپ بچوں کو گائیڈ لائن دیجیے، رہنمائی کیجیے ان کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ گالی نہیں دینی کسی کو، ٹھیک ہے؟ کتنی بری بات ہے، اس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، اور آپ جب ایسی فاؤل ورڈنگ یوز کرتے ہیں، زبان سے آپ گالیاں نکالتے ہیں تو آپ اچھے نہیں لگتے، اچھے بچے یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے بڑوں کو بھی تھوڑا خود کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی ایسی چھوٹی موٹی بات جو فاؤل ورڈنگ میں آتی ہے وہ بچوں کے سامنے مت کریں، کیونکہ بچے آپ کے سمجھانے سے شاید کم سیکھیں لیکن آبزرو کریں گے، اور وہ بات جو گھر میں ہو رہی ہوگی وہ خود بخود اس کو سیکھ جائیں گے بغیر کہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑوں کو بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جب بڑے احتیاط نہیں کرتے تو پھر وہ شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے بچے جو ہیں ان میں اچھی عادات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ کو ایسی شکایت ہو تو سب سے پہلے ہمیں خود دیکھ لینا چاہیے کہ آیا ہم وہ کام خود تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر بچے کا رکنا تھوڑا مشکل ہے۔
दूसरी बात ये कि बच्चों से बोलें कि नंगे पाँव मत चलें, जूता पहनें, गंदी चीज़ें नहीं खानी है आपने, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और फिर उन्हें शेयरिंग सिखाइए कि दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। और इसके अलावा शेयर भी कर लें, कोई टॉय हैं बच्चों के, कोई स्टेशनरी है, कोई जो है कि गेम है ऐसी जिसमें, क्योंकि टीम वर्क जो है वो मिलजुल कर खेलने से ही बच्चों को आएगा और ये वाली आदत जो है उनमें डेवलप होगी। इसके अलावा बच्चों को बताइए कि उन्होंने रात को जल्दी सो जाना है, क्योंकि सुबह आपने स्कूल जाना है। आप जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ाहिर हमारा स्कूल है तो उसमें बच्चे सुबह आते हैं तो उनकी ऐसी सिचुएशन होती है कि क्लास में उन्हें नींद आ रही होती है। तो फिर जब हम वालिदैन को बुलाते हैं, कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग अरेंज करते हैं ऐसे सिलसिले में डिस्कस करने के लिए, तो फिर हमें पता चलता है कि बच्चा रात भर पापा के या मामा के मोबाइल पे पोइम्स देखता रहा है या कुछ ड्रामा देखता रहा है या इस तरह से उसका यूज़ करता रहा है, गेम्स खेलता रहा है। तो ज़ाहिर है जब बच्चा रात गए तक ऐसी किसी एक्टिविटी में रहेगा तो सुबह उसका स्कूल जाना और वहाँ पे जो है एक्टिव रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और फिर कोशिश कीजिए कि बच्चे आपका कहना माने। हर बात में आपका ये कह देना कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, ये गलत है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपकी कोई मसरूफियत, आपका कोई काम ऐसा है कि आप बच्चे पे कम तवज्जो देते हैं, या आप अपनी बात मनवाने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप किसी दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो फिर बच्चे देखते हैं कि इस तरह से उनकी जान छूट रही है तो वो आपके कहने को टाल देते हैं। तो थोड़ा सा उनको आदी बनाएं, किसी कोई बात अगर आप कहते हैं तो फिर उसका पीछा करें, ताकि बच्चे जो हैं ये आदत उनमें आए कि उन्होंने आपकी बात को मानना है। ठीक है। और बच्चों से बोलें कि ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, ना ही बहुत धीमी आवाज़ में कि आवाज़ ही ना आए, पता ही नहीं चले, लेकिन ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी चाहिए, चीख चीख कर नहीं बोलना चाहिए, ये कोई अच्छी आदत में शामिल नहीं होता। और बच्चों को बताइए कि आपने अपने दोस्तों की हेल्प करनी है, अपनी मामा की हेल्प करनी है, अपनी पापा की हेल्प करनी है। अब ज़ाहिर है बच्चे जितनी हेल्प कर सकते हैं, कोई किचन में आपकी छोटी मोटी हेल्प कर देंगे, बच्चे जो पापा की करेंगे तो हो सकता है कोई उनके शूज़ उठा के दे दें, कोई गाड़ी वो क्लीन कर रहे हैं तो उनकी हेल्प कर दें। इसी तरह बच्चों को असातिज़ा का एहतराम करना सिखाइए, और असातिज़ा को ख़ुद भी चाहिए कि वो बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप करें, क्योंकि पहले एहतराम होगा, पढ़ाई बाद में। सफ़ा नंबर 31, बे से ये तक की आदि अशकाल को मुसव्वतों से मिलाकर लिखिए। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना मुसव्वतें कौन कौन से होते हैं उर्दू के, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। तो ज़ाहिर है कि हरूफ को जब हम मुसव्वतों के साथ मिलाएंगे तो पहले हमें पूरी शक्ल को आधी शक्ल में तब्दील करना होगा। ठीक है, तो मेरे साथ देखते जाइए। बे है, बे की आधी शक्ल। ठीक है, यहाँ हमने इसे अलिफ के साथ जोड़ा आधी शक्ल को, तो ये बना बे अलिफ बा। यहाँ पे आधी शक्ल को हमने वाव के साथ जोड़ा, बे वाव बो। छोटी ए के साथ जोड़ा, बे छोटी ए बी। बड़ी ये के साथ जोड़ा, बे बड़ी ये बै। इसी तरह पे, पे की आधी शक्ल, पे अलिफ पा, पे वाव पो, पे छोटी ए पी, पे बड़ी ए पे। मैं एक आध हर्फ जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी लिख देती हूँ। देखिए, जैसे है जीम। ठीक है, ये जीम की पूरी शक्ल। पहले हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे यूँ, और फिर हम इसके साथ अलिफ जोड़ेंगे यूँ। ठीक है, तो ये बनेगा जीम अलिफ जा। फिर हम दोबारा जीम की आधी शक्ल लिखेंगे और इसके साथ वाव, जीम वाव जो। फिर हम जीम की आधी शक्ल और उसके साथ छोटी ए, जीम छोटी ए जी। फिर हम जीम के साथ बड़ी ए, जीम बड़ी ए जे। तो जीम की आधी शक्ल के साथ जो कि कुछ इस शक्ल की है, हमने मुसव्वतें जो हैं वो जोड़े हैं, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है, जीम अलिफ जा, जीम वाव जो, जीम छोटी ए जी, जीम बड़ी ए जे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि सफ़ा नंबर 31 पे ये सारे मुसव्वतों के साथ जोड़े गए हैं।
अच्छी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सफ़ा नंबर 32। दी गई तस्वीर के नाम जिन हरूफ से शुरू होते हैं उन पर दायरा लगाइए। पिक्चर्स कोई भी आप दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन ये जो हमने लगाई हैं उसके मुताबिक ये ख़त है, ठीक है। जब आप बोलेंगे ना, ज़रा छोटे बच्चे हैं, आपको पिक्चर नेम कुछ उनको आते होंगे, कुछ आपको बताने पड़ेंगे, तो आप जब बताएंगे ना ख़त, तो ख़ुद ब खुद बच्चों को नीचे आप हरूफ बताएंगे, खे, डाल, ते। तो आप पूछें कि ख़त का पहला हर्फ क्या है, तो बच्चे जो बताएंगे खे, ठीक है। इंशाल्लाह वो बताएंगे, वो नहीं बताएंगे तो आप सिखाइए। तो खे को फिर दायरा लगाइए। आगे देखिए चांद। तो चांद आप बच्चे से पूछेंगे कि किस हर्फ से शुरू होता है, वो आपको बताएंगे चे। तो नीचे जो हरूफ हैं हे, चे, बे, तो फिर हम चे को दायरा लगाएंगे, चे, चांद। मैंने आपको बताया था कि बच्चे को दायरा लगाना सिखाइए। अमूमन बच्चे जब दायरा लगाते हैं तो हरूफ के ऊपर लगा देते हैं, हरूफ को काट देते हैं। उन्हें बताइए कि आपने दायरे के अंदर हर्फ करना है। उसके बाद है सेब। तो ये आसान सा टारगेट है, बच्चे फ़ौरन बताएंगे कि सीन से। इसी तरह साथ साथ आप पढ़ा भी रहे हैं, खे, खत, चे, चांद, सीन, सेब। उसके बाद है ये फूल है, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि ये कौन सा फूल है बच्चों से। तो अगर बच्चे नहीं बता सकते, आप बताइए गुलाब का फूल है, और फिर गुलाब गाफ से शुरू होता है, तो नीचे हरूफ हैं अलिफ, जे, गाफ। तो हम किसको सर्कल करेंगे, गाफ को। उसके बाद है, मैंने बताया था कि जहाँ फ्रूट इकट्ठे रखते हैं हम, मुख्तलिफ फ्रूट, उसको समर बोलते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे इस वक्त तक ये याद कर चुके होंगे इंशाल्लाह, और आप उनसे पूछेंगे ये किस चीज़ की तस्वीर है, तो आपको बताएंगे समर। तो फिर से समर, वाओ से नून, तो हमने सर्कल करना है, दायरा लगाना है से। आगे है दरख्त, ठीक है। और कैसे हम पढ़ाएंगे दरख्त को, दाल दरख्त, अलिफ मद्दा शीन। ज़रा अगर हम यूँ बोलें दाल दरख्त, अलिफ मद्दा दरख्त, शीन दरख्त, तो ख़ुद ब खुद बच्चे को पॉइंट आउट हो जाएगा, उसके माइंड में ये बात आएगी कि जब मैं दरख्त बोल रहा हूँ तो पहली आवाज़ जो है वो दाल की है, तो दाल दरख्त। इसी तरह हाथी। आप बच्चे से पूछें टे हाथी, क्या हाथी, है हाथी, तो बच्चा आपको बताएगा। और अगर बच्चा नहीं बता सकता तो आप गाइड करेंगे हे हाथी, ठीक है। और ये है बतख, खे बतख, बे बतख, जाल बतख। तो ज़ाहिर है वेरी इजी, बहुत आसान, बच्चे बताएंगे बे बतख। आप इसकी जगह और तस्वीरें भी आसान तरीक़ेकार है कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप पिक्चर्स ख़ुद बना सकते हैं, और नीचे कोई से 3 हरूफ लिख दें, 4 लिख दें, 2 लिख दें, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करने के साथ सीख सकें। इसके बाद है सफ़ा नंबर 33। दिए गए हरूफ की बनावट वाले मज़ीद हरूफ तहरीर करें। आपको याद है पीछे मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हरूफ के भी ख़ानदान होते हैं। हरूफ तहज्जी में बहुत से ख़ानदान हैं। अब हमसे चे के ख़ानदान के अल्फाज पूछे जा रहे हैं। आपको पता है जीम, चे, हे, खे, ये 4 होते हैं। तो एक तो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम लिखेंगे जीम, ठीक है, चे लिखा हुआ है, हे, खे। अब उसके बाद है सीन का ख़ानदान। तो ये तो छोटा सा ख़ानदान है, सीन है, तो इसके साथ हमने क्या लिखना है, शीन, और शीन के 3 नुक्ते हमने देने हैं। इसी तरह दाल, डाल का आपको पता है इस ख़ानदान के 3 हरूफ हैं, दाल, डाल, जाल, और तीनों लाइन से ऊपर होते हैं। दाल, डाल लिखा हुआ है, और आगे जाल, ठीक है। तोएं का जो ख़ानदान है वो भी 2 हरूफ पर मुश्तमिल है। तोएं लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ज़ोएं। अब ये ते है, ये आपको पता है कि ये सबसे बड़ा ख़ानदान है हरूफ तहज्जी का। इसके 5 हरूफ हैं, बे, पे, ते, टे, से। सबसे पहले हम लिखेंगे बे, फिर हम लिखेंगे पे,
नुक्ते अच्छी तरह दिलवाने हैं आपने। बे, पे, ते, टे, टे के अंदर छोटी तोएं, उसके बाद से। एन का भी छोटा सा खानदान है, 2 हरूफ पे मुश्तमिल। एन लिखा हुआ है, हम लिखेंगे गैन। ये लिखा हुआ है ये, तो इस ख़ानदान के 4 हरूफ हैं, ठीक है। आधा लाइन से नीचे, आधा ऊपर, रे, अड़े और जे, और ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके 3 नुक्ते हैं। इसके बाद है, ज़रा अब इसके बराबर कर देते हैं, क्याफ के भी ख़ानदान के 2 हरूफ हैं। क्याफ लिख दिया गया है, तो अब हम लिखेंगे गाफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कश यहाँ के रोकते हैं और ऊपर वाला थोड़ा सा इससे छोटा होता है, तो ये गाफ। उसके बाद है, हर तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। पीछे हमने जो सफ़ा नंबर 32 पे किया था, तो वो हमने हरूफ के ऊपर दायरा लगाया था, वो थोड़ा आसान काम था। ये उससे एक कदम आगे है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें बच्चे ने हरूफ लिखने हैं, ठीक है। ये पत्ता है, आप बच्चे से पूछेंगे कि इसका पहला हर्फ क्या है, तो जब वो बताएगा तो फिर वो लिखेगा पे। पे, पत्ता, नुक्ते इंतहाई एहतियात के साथ। ये है कछुआ, ठीक है। तो कछुए का पहला हर्फ है क्याफ। ये है टमाटर, टमाटर का पहला हर्फ है टे, बिल्कुल दरमियान में तो ये बनाएंगे। उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया का पहला हर्फ है चे, नुक्ते इंतहाई एहतियात के साथ प्रॉपर जगह पे। और ये है बिल्ली, बिल्ली का पहला हरूफ है, पहला हर्फ है बे, बे, बिल्ली।